اس وقت متحدہ عرب امارات میں 7، پاکستان میں 8، بھارت میں 8:30، بنگلہ دیش میں 9 اور انگلینڈ میں سہ پہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین۔ ZBC سیربین کے سامعین کو جاوید چودھری کا سلام۔ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج ملیشیا کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کی ہلاکت کے بعد مشرق وسطی میں کشیدگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ تاہم ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ کسی ایک شخصیت کی موجودگی یا عدم موجودگی سے ایران کے سیاسی نظام پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ The presence or absence of a single individual does not affect the structure. Of course, individuals are influential and each person plays their role, some better, some worse, some less. دوسری جانب ایران کے خلاف ممکنہ جنگ کے معاملے پر امریکہ کے اندر اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے ہی حامیوں کی تنقید کا سامنا ہے، جبکہ مستعفی ہونے والے امریکی انسداد دہشت گردی کے سربراہ نے بھی تہران کے حوالے سے پالیسی پر نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ ایران ہماری قوم کے لیے کوئی فوری خطرہ نہیں تھا اور یہ واضح ہے کہ ہم نے یہ جنگ اسرائیل اور اس کے طاقتور امریکی لابی کے دباؤ میں آ کر شروع کی۔ Our government's job is not to look out for Iran. ہماری حکومت کا کام نہ ایران کے مفادات دیکھنا ہے اور نہ اسرائیل کے، بلکہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور یہ جنگ واضح طور پر اسرائیل کی جنگ لگتی ہے۔ Like it is clearly Israel's war. It's hard to say this, but the United States یہ کہنا مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ امریکہ نے نہیں کیا بلکہ بنجامن نیتن یاہو نے کیا۔ Netanyahu did. ادھر اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایرانی عوام کے نام ایک غیر معمولی ویڈیو پیغام جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جشن منائیں، ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ایران کے عظیم عوام آگ کے تہوار نوروز کو آزادی سے منا سکے، لہٰذا جشن منائیں اور نوروز مبارک۔ ہم اوپر سے نظر رکھے ہوئے ہیں۔ Celebrate and happy Nowruz. We're watching from above. کیا ایرانی حملوں میں اسرائیل کے کسی اہم مقام کو نشانہ بنایا گیا ہے؟ اس پر بات کریں گے یروشلم میں موجود ہریندر مشرا سے۔ پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ میں یروشلم میں ہوں اور یہاں بھی جو ہے کل مزید کشیدگی دیکھی گئی، یہاں پر مزید حملے ہوئے اور پہلی بار یہ نظر آیا کہ اس ایرانی جو میسائلز ہیں وہ یروشلم کے بالکل مرکزی علاقوں میں جو ہے وہ گرے ہیں۔ مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن کی تازہ رپورٹ میں انڈین خفیہ ادارے را اور تنظیم RSS پر پابندی کی تجویز دی گئی ہے، جبکہ بھارت کو اسلحے کی فروخت روکنے کا مطالبہ بھی سامنے آیا ہے۔ پاکستان میں اسلام آباد کے تعلیمی اداروں میں تولیدی صحت کی تعلیم دینے سے متعلق مجوزہ بل بھی بحث کا مرکز بنا ہوا ہے، جہاں ماہرین کا کہنا ہے کہ بچوں کو بر وقت آگاہی دینا ضروری ہے تاکہ وہ کسی استحصال کا شکار نہ ہو۔ یہ ایک بیسک چیز ہے، پرائمری میں آپ پڑھائیں جی گڈ ٹچ کیا ہے، بیڈ ٹچ کیا ہے، what changes your body is going through, what you should not be ashamed of, what you should not be scared of asking. مطلب ایک بڑا خلا ہے جو ہمارے بچے آج پر کر رہے ہیں فرام ان نون سورسز۔ سائنس کی دنیا سے ایک دلچسپ مگر سنسنی خیز سوال، کیا واقعی کائنات کا خاتمہ ممکن ہے، اور اگر ہاں تو کیسے؟ ماہرین اس حوالے سے 3 ممکنہ نظریات پیش کر رہے ہیں۔ یہ نظریات بھی جانیں گے آج کے سیربین میں، اور پھر چلیں گے بھارت کے ایک ایسے گاؤں کی جانب جہاں کے لوگ اپنا شجرہ نسب ایران کے رہبر اعلیٰ سے جوڑتے ہیں۔ آج کے سیربین میں سنیے ایک ایسی آواز جو وقت کے ساتھ تاریخ بن گئی، مہاپارا صفدر کی لائبریری سے نایاب فوٹیج۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ لوگ بخیریت ہوں گے، اور یہ جو آج میں آپ کو فوٹیج دکھانے والی ہوں اور جو آپ سے بات کرنے والی ہوں، یہ 80 کے عشرے کے نصف کے بعد کی بات ہے۔ اس کے علاوہ مزید خبریں اور تجزیے بھی آج کے سیربین میں شامل رہیں گے، مگر ہمیشہ کی طرح پہلے اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سامعین، آج کی دنیا ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں خبریں محض اطلاعات نہیں رہیں، بلکہ ایک مسلسل بدلتی ہوئی کہانی کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایک ایسی کہانی جس کے کردار طاقتور بھی ہیں اور بے بس بھی، اور جس کا سٹیج ہے مشرق وسطی۔
गुज़िश्ता 24 घंटों में इस खित्ते में जो कुछ हुआ इसने फिजा को मजीद बोझल कर दिया है। ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी और बसीज मलेशिया के कमांडर गुलाम रजा सुलेमानी की हलाकत ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या अफराद तारीख बदलते हैं या निज़ाम? ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची का जवाब वाज़ेह है। निज़ाम अफराद से बड़ा होता है और एक चेहरा ख़त्म हो जाए तो दूसरा फौरन उसकी जगह ले लेता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और कहानी सुना रही है। ईरान की जानब से इसराइल के तिल अबीब पर मिसाइल हमलों का दावा किया गया है, जबकि इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर एक और महाज गर्म कर रखा है। बैरूत के मुजाफात में धमाकों की आवाज़ें, खौफ ज़दा शहरी और खाली होते घर, ये सब इस बात का ऐलान है कि जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, जिंदगियों के अंदर भी लड़ी जा रही है। उधर अमेरिका भी अब महज तमाशाई नहीं रहा। आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी तनसीबात पर हमलों का दावा करते हुए वाशिंगटन ने वाज़े कर दिया है कि आलमी मफादात की हिफाजत के नाम पर वो इस तनाज़े में अपना किरदार बढ़ा सकता है। अमेरिका की तरफ से 5000 पाउंड यानी 2270 किलोग्राम के बंकर बस्टर का इस्तेमाल इस बात का सबूत है कि वाशिंगटन का ख्याल है कि ईरान ने अपने बहुत से हथियार ज़मीन की गहराई में छुपा रखे हैं। खलीजी ममालिक सऊदी अरब, कुवैत, कतर और बहरीन भी अलर्ट पर हैं, जहां फिजा में गर्दिश करते ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने की कोशिशें जारी हैं। मगर इस जंग का एक और पहलू भी है और वो है इख्तलाफ। अमेरिका के अंदर ही सदर ट्रंप की पॉलिसी पर दरारें पड़ने लगी हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को अपने ही हामियों की तनकीद का सामना है, जबकि इंसदाद दहशतगर्दी के एक आला ओहदेदार जो केंट अपने ओहदे से इस्तीफा देते हुए कह चुके हैं कि वो अपनी ज़मीर के खिलाफ जंग का हिस्सा नहीं बन सकते। सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफे के ऐलान में जो केंट ने कहा कि अपने ज़मीर के खिलाफ जाकर ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। अमेरिकी सेनेट ने गुज़िश्ता जुलाई में सदर ट्रंप की जानिब से उस ओहदे के लिए जो केंट को नामजद किए जाने के बाद उनकी तकर्री की मंजूरी दी थी। ट्रंप के नाम अपने इस्तीफे के खत में जो केंट ने लिखा कि ईरान ने हमारे मुल्क के लिए कोई फौरी खतरा पैदा नहीं किया था और ये वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लॉबी के दबाव के तहत शुरू की है। उन्होंने मजीद कहा कि वो उन अक़दार और खारिजा पॉलिसियों की हिमायत करते हैं जिन पर ट्रंप ने 2016, 2020 और 2024 की इंतखाबी मुहिम चलाई और अपनी पहली मुद्दत सदारत में नाफिज की। केंट ने लिखा कि जून 2025 तक आप समझते थे कि मशरिक़ वुस्ता की जंगें एक जाल हैं जो अमेरिका के मुहिब्बे वतन जवानों की कीमती जानें छीनती हैं और हमारे मुल्क की दौलत और खुशहाली को ख़त्म करती हैं। उन्होंने लिखा कि मैं एक तजर्बाकार सिपाही के तौर पर 11 बार महाज जंग पर गया और एक गोल्ड स्टार शोहर जिसने अपनी शरीक हयात को इसराइल की झोंकी जंग में खो दिया। उन्होंने लिखा कि मैं इस बात की हिमायत नहीं कर सकता कि अगली नस्ल को ऐसी जंग में धकेला जाए जिसका अमरीकी अवाम को कोई फायदा नहीं और जिसकी कीमत अमरीकी जानों से अदा की जाए। मजीद तफसील पेश कर रही हैं आयशा जावेद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंसदाद दहशतगर्दी टीम के एक आला ओहदेदार ने ईरान के खिलाफ जंग पर इख्तलाफ करते हुए इस्तीफा दे दिया है। जो केंट का कहना है कि ये बात वाज़ेह है कि ये तनाज़ा इसराइल के दबाव के बायस शुरू किया गया, जबकि ईरान अमेरिका के लिए कोई फौरी खतरा नहीं था। मैं अपने ज़मीर के मुताबिक ईरान में जारी जंग की हिमायत नहीं कर सकता। ईरान हमारी कौम के लिए कोई फौरी खतरा नहीं था और यह वाज़ेह है कि हमने ये जंग इसराइल और उसके ताकतवर अमरीकी लाबी के दबाव में आकर शुरू की। इसके जवाब में सदर ट्रंप ने उन पर तनकीद करते हुए कहा कि वो सिक्योरिटी के मामले में इंतहाई कमज़ोर हैं। जब मैंने उनका बयान पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि उनका जाना अच्छा हुआ, क्योंकि वो कह रहे थे कि ईरान खतरा नहीं था। ईरान हर मुल्क के लिए खतरा था। सब जानते थे कि ईरान खतरा है, सवाल सिर्फ ये था कि क्या वो इसके खिलाफ कुछ करना चाहते थे या नहीं। दूसरी जानिब व्हाइट हाउस के हुक्काम सख्त गुस्से के साथ इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को इसराइल ने ईरान के खिलाफ जंग में धकेला है। उनका कहना है कि ये इल्ज़ाम मज़हका खेज़ है। साथ ही वो जो केंट पर भी तनकीद कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि उन्हें ईरान से मुतालिक अहम इजलासों से दूर रखा गया क्योंकि वो मालूमात लीक करने के लिए मशहूर थे। यहाँ तक कि कुछ हुक्काम ने उन्हें खुद पसंद और गैर मतवाज़न शख्सियत भी करार दिया है। ताहम उनकी तनकीद ने ट्रंप के अपने हामियों में खासी गूंज पैदा की है।
جو کینٹ ٹرمپ انتظامیہ میں کوئی بہت معروف شخصیت نہیں تھے، لیکن وہ ایک پکے حامی تھے جنہوں نے صدر کی پالیسیوں کی حمایت کی، حتیٰ کہ انہوں نے 2020 کے انتخابات کے حوالے سے ان کے اس دعوے کی بھی تائید کی کہ انتخاب ان سے چھین لیا گیا تھا۔ جو کینٹ کا کہنا ہے کہ انہیں استعفیٰ دینا پڑا کیونکہ صدر نے امریکہ فرسٹ کے اصول کو ترک کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت مزید نمایاں ہوا جب سینٹ پیٹرک ڈے کے موقع پر آئرلینڈ کے وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات کے دوران صحافیوں نے اس استعفے پر سوالات اٹھائے۔ صدر ٹرمپ نے جواب دیتے ہوئے کہا، جب میں نے ان کا بیان پڑھا تو مجھے احساس ہوا کہ ان کا جانا اچھا ہوا، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایران خطرہ نہیں تھا۔ ایران ہر ملک کے لیے خطرہ تھا۔ سب جانتے تھے کہ ایران خطرہ ہے، سوال صرف یہ تھا کہ کیا وہ اس کے خلاف کچھ کرنا چاہتے تھے یا نہیں۔ یہ الزام کہ امریکہ کو اسرائیل نے اس جنگ میں گھسیٹا، جنگ کے آغاز میں امریکہ کے اعلیٰ سفارتی عہدیدار کے بیان سے بھی تقویت پاتا ہے۔ ہمیں معلوم تھا کہ اسرائیل کارروائی کرے گا اور اس کے نتیجے میں امریکی افواج پر حملہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ بھی علم تھا کہ اگر ہم نے پہلے حملہ نہ کیا تو ہمیں زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑ سکتا تھا۔ ادھر ٹرمپ کے حامیوں میں شامل کچھ معروف میگا سوشل میڈیا شخصیات بھی صدر پر تنقید کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ انہیں اسرائیل نے اس جنگ میں دھکیلا۔ Our government's job is not to look out for Iran. ہماری حکومت کا کام نہ ایران کے مفادات دیکھنا ہے اور نہ اسرائیل کے، بلکہ امریکہ کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے، اور یہ جنگ واضح طور پر اسرائیل کی جنگ لگتی ہے۔ Like it is clearly Israel's war. It's hard to say this, but the United States یہ کہنا مشکل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فیصلہ امریکہ نے نہیں کیا بلکہ بینجامن نیتن یاہو نے کیا۔ Netanyahu did. صدر ٹرمپ نے نیٹو اتحادیوں خاص طور پر برطانیہ اور اس کے وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر بھی مایوسی کا اظہار کیا اور کہا کہ انہوں نے ایران کے خلاف جنگ میں ساتھ نہیں دیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان طویل عرصے سے قائم خصوصی تعلقات متاثر ہو رہے ہیں۔ یہ تعلق ہمیشہ بہترین تھا، لیکن کیئر کے آنے کے بعد ایسا نہیں رہا۔ وہ ایک اچھے انسان ہے، خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بہترین خاندان رکھتے ہیں، سب کچھ اچھا ہے، لیکن وہ نتائج نہیں دیتے۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر یہ بھی لکھا کہ اب امریکہ کو نیٹو ممالک کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ خواہش ہے۔ ایران کے خلاف جنگ شروع کرنے اور بغیر کسی فوری خطرے کو ثابت کیے ڈونلڈ ٹرمپ نہ صرف اپنے اتحادیوں سے دور ہو گئے ہیں بلکہ ان کے اپنے پرجوش حامی بھی انہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے نیٹو اتحادیوں سے بھی زیادہ خوش نہیں ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز نیٹو ممالک سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ آبنائے ہرمز کو محفوظ بنانے میں امریکہ کی مدد کریں، لیکن اب تک نیٹو ممالک کی جانب سے اس ڈیمانڈ کا کوئی مثبت جواب نہیں آیا ہے۔ فرانس نے تو واضح کر دیا ہے کہ وہ جنگ کے دوران آبنائے ہرمز کو زبردستی کھولنے کی امریکی کوشش کا حصہ نہیں بنے گا۔ جرمنی کے چانسلر فریڈرک مرز نے کہا ہے کہ ایران کے مسئلے کا حل سیاسی ہونا چاہیے، فوجی نہیں۔ مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں۔ نیٹو ایک دفاعی اتحاد ہے، مداخلت کرنے والا اتحاد نہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ اتحادی ممالک ایک دوسرے کے ساتھ ضروری احترام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے اور وہ یہ کہ اس ایرانی حکومت کا خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کی جگہ ایک جمہوری حکومت قائم ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے تجربات کی بنیاد پر ہمیں لگتا ہے کہ ایران کو بمباری کے ذریعے جھکانا غالباً درست طریقہ نہیں ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نے ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں وہ فوجی کمانڈروں کے درمیان کھڑے ہو کر ایرانی عوام کے لیے پیغام دے رہے ہیں۔ بنیامین نیتن یاہو کا کہنا تھا کہ میں یہاں اسرائیل کے وزیر دفاع، ہمارے چیف آف سٹاف، موساد کے سربراہ، فضائیہ کے سربراہ اور ہمارے سینئر کمانڈروں کے ساتھ موجود ہوں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہم نے اس جابرانہ حکومت کے 2 بڑے دہشت گرد سرغنوں کو ختم کر دیا ہے۔ واضح رہے کہ اب ایران نے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی اور بسیج ملیشیا کے سربراہ غلام رضا سلیمانی کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے، جس کا اعلان اسرائیل نے پہلے ہی کر دیا تھا۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ ہمارے طیارے دہشت گرد عناصر کو میدانوں میں، چوراہوں پر اور شہر کے مرکزی مقامات پر نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ جمعے کو آنے والے ایرانی نئے سال نوروز کے حوالے سے پیغام دیتے ہیں کہ یہ سب اس لیے ہے کہ ایران کے بہادر لوگ جشن منائیں، تو جشن منائیں اور نوروز مبارک۔
हम ऊपर से देख रहे हैं। I'm here with Israel's defense minister, our chief of staff, the head of the Mossad, the chief of Air Force. मैं इसराइल के वजीर दिफा, हमारे चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद के सरबराह, फजाइया के सरबराह और अपने सीनियर कमांडर्स के साथ मौजूद हूँ। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान हमने इस जबर के 2 बड़े दहशतगर्द सरगनों को हलाक कर दिया है। हमारे तैयारे ज़मीन पर मौजूद दहशतगर्द अनासिर को निशाना बना रहे हैं, चौराहों पर, शहर के मरकजी मकामात पर। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि ईरान के अजीम अवाम आग के त्यौहार नौरूज़ को आज़ादी से मना सके। लिहाजा जश्न मनाएं और नौरूज़ मुबारक। हम ऊपर से नज़र रखे हुए हैं। Celebrate and Happy Nowruz. We're watching from above. चंद पहले दिनों में इसराइल के वजीर आजम ने यह भी कहा कि वो अब सब कुछ कर सकते हैं जो वो 40 साल से करने की उम्मीद रखते हैं। बकौल उनके वो ईरान में दहशतगर्दी की हुकूमत को मुकम्मल तौर पर कुचल देंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइलियों को बताया कि बमबारी की मुहिम पहले ही दिन से मकासद हासिल कर रही है। बीबीसी की मशरक़ वुस्ता की नामा निगार लूसी विलियमसन ने इस जंग का जायजा लिया है जो नेतन्याहू हमेशा से चाहते थे। ईरानी मिसाइलों के इसराइल पर हमले अब भी जारी हैं, लेकिन इसराइली वज़ीर आज़म कहते हैं कि इस जंग ने पहले ही मशरक़ वुस्ता और उसके अंदर इसराइल की ताकत के तस्वुर को बदल कर रख दिया है। इतवार के रोज़ तेल अवीव के आसपास कई मकामात पर ईरानी क्लस्टर बमों के टुकड़े गिरे हैं। इसराइल कई दहाइयों से ईरान के साथ जंग का मंसूबा बना रहा था। एक साबिक जनरल का कहना है कि फतेह ईरान के इंतहाई अफजूदा यूरेनियम के ज़ख़ीरे को दरियाफ्त करने पर मुनहसिर होगी। ईरान काफ़ी हद तक कमज़ोर है। वो फ़ज़ाइया खो चुके हैं। वो अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की ज़्यादातर सलाहियत खो बैठे हैं। उन्होंने बहरिया को खो दिया। अब उन्होंने कहा ठीक है, हमें खेल का एहसास है, हम अब समझ गए हैं। आप हम पर हमले करते रहेंगे जब तक कि हमारे पास जौहरी सलाहियत नहीं है। ये पहले से भी बदतर सूरत हाल हो सकती है। ईरान की मिसाइलों का खतरा अब लोगों को पनाहगाहों की तरफ भागने पर मजबूर नहीं करता, लेकिन ईरानी हुकूमत की मौजूदगी में क्या ये ऐसी जंग है जो इसराइल को 1 या 2 साल में फिर लड़नी पड़ेगी? अगर ज़रूरी हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अब भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि वो हमारे साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकते जैसा वो पहले करते थे। इसराइल एक छोटा ताकतवर मुल्क है जिसका अपना ईंधन की कीमतों का निज़ाम है। वो एक सुपर पावर इत्तेहादी के साथ मिलकर लड़ रहा है जिसे तवानाई के अखराजात और तवील जंगों से बचना है। अमेरिका में सियासी हकीकत यहाँ की सियासी हकीकत से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ तक कि वो लोग जो नेतन्याहू से नफरत करते हैं वो भी इनके पीछे मजबूती से खड़े हैं। सवाल ये है कि टाइम टेबल इसराइल से कहीं ज़्यादा अमेरिका का मसला है। अमेरिका पर जो दबाव महसूस होते हैं ऐसे दबाव इसराइली हुकूमत पर नहीं है। इसराइल ये जंग अपनी ही शुमाली सरहद पर ईरान के लुबनानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ रहा है। एक बार बार उठता तनाज़ा जिसे कुछ फौजी रहनुमा ख़त्म करने का मौका देख रहे हैं। इसराइली फ़ौज सरहद पर जमा हो रही है और वसी ज़मीनी हमले की बात हो रही है। अभी हम फौरी खतरे को देख रहे हैं। अभी हिजबुल्लाह को गैर मुसल्लह करने का अमल जारी है। ये सिफारती या फौजी तरीके से हो सकता है। मेरे ख्याल में खत्े के ममालिक और दीगर ममालिक जैसा कि अमेरिका, फ्रांस और बरतानिया वगैरह हिजबुल्लाह को किसी न किसी तरीके से गैर मुसल्लह करना चाहते हैं। तो अब तक गजा, लुबनान और ईरान में इसराइल की फौजी ताकत ने खतरात को सिर्फ महदूद किया है, तनाज़ात को हल नहीं किया। और इसी बारे में मजीद बात करते हैं। इस वक्त यरूशलेम से हरिंदर मिश्रा हमारे साथ हैं। हरिंदर, अमेरिका और इसराइल के हमलों के बावजूद इसराइल पर ईरानी हमले जारी हैं, बल्कि ईरान ने अपने हमलों की एक नई लहर भी शुरू कर दी है। तो इसका इसराइल पर क्या असर हुआ? क्या इसराइल का कोई खास मुकाम निशाना बनाया गया है? पहले तो आपको बताऊं कि मैं यरूशलेम में हूं और यहाँ भी जो है कल मजीद कशीदगी देखी गई। यहाँ पर मजीद हमले हुए और पहली बार ये नज़र आया कि इस ईरानी जो मिसाइल्स हैं वो यरूशलेम के बिल्कुल मरकज़ी इलाकों में जो है वो गिरे हैं। उसके कुछ जो फ्रैगमेंट्स हैं वो टुकड़े जो हैं वो चर्च ऑफ होली सेपल्कर, जो कि जहाँ की माना जाता है कि ग्रेव है जीसस क्राइस्ट का, उसके करीब भी जो है एक बहुत बड़ा फ्रैगमेंट गिरा और वहाँ पर कई सारे और भी टुकड़े गिरे जिसकी तस्दीक यहाँ पर इसराइली पुलिस और इसराइली वजारत खारजा के
जो तर्जुमान हैं दोनों ने इसकी तस्दीक की है और उससे काफ़ी करीब से दरअसल हमने भी थोड़े बहुत जो टुकड़े हैं वो भी आज हमने भी सुबह देखे और ये तो यरूशलेम में उस हमले के बाद यहाँ पर और कोई हमला नहीं हुआ है, लेकिन कल रात से अभी तक तकरीबन 6 लहर देखे गए हैं ईरानी हमलों के, और खास करके जो मरकजी इलाके हैं वहां पर ईरान ने उनको निशाना बनाया। वहां पर एक रेलवे स्टेशन है, उसके करीब भी जो है मिसाइल गिरा और उसके बाद रेलवे सर्विस यहाँ पर जो है वो बंद हो गई है। और कई सारे शुमाली इलाकों में भी ईरान के हमले हुए हैं, लेकिन शुमाली इलाकों में ज्यादातर जो हमले हैं वो हिजबुल्लाह के हुए हैं, जिसकी वजह से वहां पर ज्यादातर जो आबादी है वो शेल्टर में उन्होंने पनाह ले रखी है। जहां तक मरकजी और यरूशलेम का सवाल है तो यहाँ पर चूंकि 10 मिनट का एक अलर्ट आता है तो लोग आपको सड़कों पर नजर आ जाएंगे। मैं अभी सड़क पर यहाँ पर खड़ा हूँ, लेकिन जब भी वार्निंग आता है तो लोग जो है वो एहतियातन शेल्टर के करीब पहुंच जाते हैं। हरिंदर मिश्रा, आपका शुक्रिया। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी यानी USCIRF की सालाना रिपोर्ट में इंडिया में मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर तशवीश जाहिर की गई है और सिफारिश की गई है कि इंडिया को खास तशवीश वाले ममालिक में शामिल किया जाए। रिपोर्ट में RSS और इंडिया की खुफिया एजेंसी राह समेत बाज़ इदारों के खिलाफ पाबंदियां आयद करने की तजवीज़ दी गई है, जिनके अफराद के अमरीका में असासे मुंजमद किए जा सकते हैं और उनके दाखिले पर पाबंदी भी लग सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुस्लिम और मसीही अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन, सख्त कन्वर्जन कवानीन और गाय के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर हुजूम के तशद्दुद के वाक़यात में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में फ़िरका वाराना तशद्दुद के वाक़यात का भी जिक्र किया गया है। इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने रिपोर्ट को सियासी एजेंडे पर मबनी और जानिबदार करार देते हुए मुस्तरद कर दिया है, जबकि कांग्रेस ने RSS पर पाबंदी लगाने की हिमायत की है। ताहम सोशल मीडिया पर इस पर तनकीद भी हुई है। रिपोर्ट के बाद RSS की जानिब से अभी तक कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया है। और अब दीगर आलमी खबरों पर एक नजर डाल रहे हैं खालिद करामत। श्रीलंका ने मुल्क में तेल की मुमकिन किल्लत के पेश नज़र हर बुध को अवामी इदारों के लिए छुट्टी का ऐलान कर दिया है। ये फैसला ऐसे वक्त में किया गया है जब अमेरिका और इसराइल के ईरान के साथ जंग के असरात आलमी सतह पर तेल और गैस की सप्लाई के हवाले से महसूस किए जा रहे हैं। सदर अनुरा कुमार दसनाइके ने पीर को सीनियर हुकाम के साथ हंगामी इजलास में कहा, हमें बदतरीन सूरत हाल के लिए तैयारी करनी होगी, मगर उम्मीद है कि सब बेहतर होगा। अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गजा जंग के दौरान होने वाले एहतजाज के बाद टेक्सास में 1 साल तक इमिग्रेशन हुकाम की हिरासत में रहने वाली फ़लस्तीनी खातून लेका कुर्दिया को रिहा कर दिया गया है। वो न्यूयॉर्क सिटी में कैंपस के बाहर 100 से ज़्यादा मुजाहिरीन के साथ गिरफ्तार हुई थीं, ताहम बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। मार्च 2025 में एक मामूल की इमिग्रेशन चेक इन के दौरान उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया था। नाइजीरिया के शुमाल मशरकी शहर मैदुगुरी में पुलिस के मुताबिक मुबैना तौर पर 3 बम हमलों में कम अज़ कम 23 अफराद हलाक और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए हैं। इन धमाकों का निशाना एक मसरूफ़ मार्केट और एक हस्पताल था। अभी तक ये वाज़ेह नहीं कि इन हमलों के पीछे कौन है। अमेरिकी रियासत यूटा से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून कोरी रिचन्स अपने शौहर के कत्ल की मुजरिम करार पाई हैं। उन्होंने अपने शौहर की अचानक मौत के बाद बच्चों के लिए गम पर एक किताब शाया की थी। जूरी ने यह फैसला दिया कि रिचन्स ने मार्च 2022 में अपने शौहर को फेंटेनाइल मिलाकर मशरूब देकर जहर दिया। जूरी ने केस पर तकरीबन 3 घंटे गौर व गौस के बाद पीर को अपना फैसला सुनाया। पाकिस्तान की पार्लिमान ने वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के तालीमी इदारों में 14 साल और इससे ज़ायद उम्र के तुलबा के लिए तौलीदी सेहत की तालीम देने का बिल मंजूर कर लिया है। इस कानून के तहत बच्चों को तालीम देने से पहले वालिदैन या कानूनी सरपरस्तों की तहरीरी इजाज़त लाजमी होगी। बिल सेनेटर कुरातुलैन मरी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर हैं, ने पेश किया है, जबकि कौमी असम्बली में रुकन शाजिया मरी ने इसे सादा अक्सरियत से मंजूर करवाया है। बिल का मकसद तुलबा को इल्मी, जज्बाती, जिस्मानी और समाजी पहलुओं पर मुश्तमिल तौलीदी सेहत की जामे तालीम फराहम करना है, ताकि वो अपनी सेहत, वकार और समाजी ताल्लुकात को महफूज रख सकें और अपने हुकूक और फैसले के असरात को भी समझ सकें।
इस बिल को पेश करने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेनेटर कुरातुलैन मरी ने BBC को बताया कि तौलीदी सेहत को निसाब में शामिल करने की ज़रूरत मौजूदा दौर की है। उन्होंने कहा कि बच्चे अगर किसी चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं और जब उन्हें उस्ताद इस बारे में नहीं बताता तो वो इस बारे में मुतजस्सिस हो जाते हैं और इस तजस्सुस को पूरा करने के लिए वो इंटरनेट और दूसरे ज़राए का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो गलत हाथों में फंस जाते हैं। उन्होंने कहा कि ये बात मुशाहिदे में आई है कि बच्चे अपने इस तजस्सुस को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए तौलीदी सेहत की तालीम को निसाब में शामिल करने के लिए कानून साजी की गई है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे बच्चे, आपने देखा होगा कई जगहों पे ये ग्रूमिंग रिंग्स आ गई हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग्स आ गई हैं, देयर इज अ रियल डर्थ ऑफ चिल्ड्रन गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। तो मैं तो बड़ी हैरान थी कि हमारे बच्चों को हेल्थ एजुकेशन नहीं पढ़ाई जा रही। ये एक बेसिक चीज है, प्राइमरी में आप पढ़ाएं जी गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, what changes your body is going through, what you should not be ashamed of, what you should not be scared of asking। मतलब एक बड़ा खला है जो हमारे बच्चे आज पुर कर रहे हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेज। तो मेरी नजर में बेहतर ये है कि नॉन सोर्स से आप चाहे, मतलब एज यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट, most senators did not outrightly reject this bill। सामीन, इस कायनात का जिसमें हम रह रहे हैं का इख्तिताम कैसे होगा? एक तारीक, सर्द और तन्हाई में आने वाली किसी हद तक बेरंग मौत, एक शदीद तर और पुरतशद्दुद अंजाम, या शायद एक ऐसा इख्तिताम जिसके बाद एक नई शुरुआत हो। ये वो नुमाया नजरियात हैं जो साइंसदानों के मुताबिक हमारी कायनात के मुमकिन अंजाम की तस्वीर पेश करते हैं। हमारी कायनात की तकदीर क्या होगी? यह साइंस को दरपेश सबसे पुरअसरार और मुश्किल तरीन सवालात में से एक है। माहिरीन खुद एतराफ़ करते हैं कि इस मौजू पर सवालात ज़्यादा हैं और जवाबात इंतहाई कम, लेकिन ये समझने के लिए कि हमारी कायनात किस तरह ख़त्म हो सकती है, पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसका आगाज़ कैसे हुआ था। कायनात एक पुरअसरार हकीकत है जिसमें खला, मादा, तवानाई और वक्त सब शामिल हैं। माहिरीन के मुताबिक कायनात का आगाज़ तकरीबन 13.8 अरब साल पहले एक अजीम धमाके यानी बिग बैंग थ्योरी के तहत हुआ, जिसके बाद से ये मुसलसल फैल रही है और इसी अमल के नतीजे में कहकशाएं, सितारे और सैयारे वजूद में आए हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर कायनात का फैलाव इसी तरह जारी रहा तो इसका अंजाम मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। एक नजरिया बिग फ्रीज हीट डेथ है, जिसके मुताबिक कायनात बातदरीज ठंडी, तारीख और खाली होती जाएगी और बिलाखिर सितारों की तश्कील रुक जाएगी। दूसरा नजरिया बिग रिप है, जिसमें डार्क एनर्जी के बाइस कायनात इतनी तेजी से फैलेगी कि कशिश सकल भी चीज़ों को जोड़े नहीं रख सकेगी और सितारे, सैयारे, हत्ता के एटम भी टूट जाएंगे। इसके बरक्स बिग क्रंच का तस्वर यह है कि अगर कशिश सकल गालिब आ जाए तो कायनात सुकड़ कर दोबारा एक नुक्ते में सिमट सकती है, जबकि बिग बाउंस के मुताबिक ये अमल एक मुसलसल चक्कर भी हो सकता है जहां कायनात बार बार बनती और ख़त्म होती रहे। माहिरीन का मानना है कि कायनात के अंजाम के बारे में अभी हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कॉस्मोलॉजी के मैदान में इंसानी इल्म अब भी महदूद है। ताहम अंदाजे के मुताबिक कायनात का इख्तिताम खरबों बल्कि इससे भी ज़्यादा साल बाद मुमकिन है और इंसानी नस्ल शायद इस मरहले को देखने के लिए मौजूद ही ना हो। इंडियन रियासत उत्तर प्रदेश के बाराबंकी गांव इन दिनों खबरों में है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई की इसराइल और अमरीकी हमले में हलाकत के बाद ये गांव तवज्जो का मरकज बन गया है। दावा किया जाता है कि ईरान के पहले सुप्रीम लीडर आयतुल्ला रूहुल्लाह खमीनी के आबाओ अजदाद इसी गांव में रहते थे। कुछ बाशिंदे ये भी दावा करते हैं कि उनके आबाओ अजदाद का ताल्लुक खमीनी से है। तफसील मुअज़्ज़ज़ इमाम से। लखनऊ से 35 किलोमीटर की दूरी पर बाराबंकी ज़िले में एक किंतूर गांव है। ये इस वक्त सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि अमेरिका और इसराइल के जॉइंट हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की मौत हो गई है। लेकिन अली खामनाई का इस गांव से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि इस गांव से ताल्लुक़ है खुमैनी का, जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर हैं। हम यहाँ पे उनके रिश्तेदारों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि खुमैनी के पूर्वज यहाँ पे कब रहते थे और कैसे यहाँ से माइग्रेट करके ईरान गए और फिर ईरान की सत्ता हासिल की।
رمضان کے مہینے کی وجہ سے کنتور گاؤں میں بہت کم لوگ باہر دکھائی دے رہے ہیں. یہاں ہماری ملاقات نہال کاظمی سے ہوئی جو آیت اللہ خمینی سے اپنا شجر نسب جوڑتے ہیں. 1830 میں وہ یہاں سے گئے. یہاں سے جانے کے بعد مطلب وہ گئے تو تھے زیارت کے مقصد سے, پھر اس کے بعد وہیں وہ خمین نام کا ایک جگہ ہے وہاں پہ, وہ وہیں آباد ہو گئے. نہال کاظمی نے بتایا کہ ان کی رشتہ داری ایران کے پہلے رہبر اعلیٰ امام خمینی سے ہے. جو ان کے دادا تھے احمد حسین ہندی صاحب, وہ ہمارے پردادا کے دادا کے کزن ہوتے تھے, جو ہمارے مطلب دادا نے ہمیں بتایا. ایران کا نشیپور شیعہ برادری کا بڑا مرکز تھا. مصوی سادات شیعہ کمیونٹی کے 7ویں امام حضرت موسیٰ کاظم کی اولاد کہی جاتی ہیں. لکھنؤ میں مقیم معروف شیعہ عالم دین سید عباس ناصر ابکتی کے بھی آب و اجداد کنتور کے رہنے والے تھے. وہ کہتے ہیں ایران کے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ روح اللہ خمینی سے ان کی پرانی رشتہ داری ہے. خمینی صاحب کے آب و اجداد کنتور سے ایران کے خمایوں گئے تھے. خمینی صاحب کے دادا اور میرے والد کے پردادا چچا زاد بائی تھے اور خمینی میں ان کا گھر ابھی بھی بیت ہند کہلاتا ہے. ایران کے کنتور گاؤں کی فضائی مسافت تقریباً 3000 کلومیٹر ہے, لیکن مشرقی وسطی میں جاری جنگ کے اثرات یہاں بھی محسوس کیے جا رہے ہیں. ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کی موت کے بعد یہاں تعزیتی مجلس بھی ہوئی اور احتجاج بھی ہوئے. کنتور سے کچھ فاصلے پر رسول پور کے رہنے والے ڈاکٹر ریحان کاظمی کی بھی کنتور میں رشتہ داری ہے. ایک باقر معین صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے آیت اللہ خمینی صاحب پہ, اس میں آپ کو پورا اس کا ایویڈنس مل جائے گا اور اوتھینٹک بک ہے وہ. دیکھیے میں سننے میں تو ضرور آتا ہے کہ ایران کلچر ہاؤس سے کچھ لوگ یہاں پہ تشریف لائے تھے, لیکن شاید ہم لوگوں سے ملاقات نہیں ہو سکی. رہی بات رابطے کی, تو اس طرح کے وسائل نہیں تھے کہ اس وقت ان سے بہت زیادہ رابطہ کیا جا سکتا. جو لوگ زیارت پہ ضرور جاتے تھے یہاں سے یا کنتور سے رسول پور سے زیارت پہ جو لوگ جاتے تھے, تو ان سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی ملاقات ہو جایا کرتی تھی. اچھا ایک سیفٹی پرپز بھی تھا کہ انہوں نے بہت زیادہ جو نہیں کہا یا نہیں بتایا, وہ سیفٹی ایشوز بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ اور لوگوں کو پریشانی اٹھانی پڑے. آیت اللہ روح اللہ خمینی کی پیدائش 17 مئی 1902 کو ایران میں ہوئی تھی, لیکن کنتور کے رہنے والے افسر عباس نے بتایا کہ ان کی خمینی سے کنتور سے تعلق کے بارے میں کیسے معلوم ہوا. 79 میں اسلامک کرانتی آئی, اس کے بعد گاؤں میں کیا چرچا ہوتی تھی, تب آپ کیا کہتے, عمر بھی جوانی کی طرف رہے ہوں گے آپ. اس وقت یہی تھا کہ دیکھو بھائی ہمارے گاؤں کے نکلے, اور لوگوں کو پہلے پتہ نہیں تھا, اچانک معلوم ہوا کہ اچھا یہ ہمارے یہاں کے تھے, تو لوگوں کو فخر محسوس ہوا اس بات پر. افسر عباس کے مطابق ان کے بزرگوں نے بتایا تھا کہ گاؤں کے مشرقی حصوں میں ان کی رہائش تھی. حالانکہ گاؤں میں اب اس گھر کا کوئی نشان باقی نہیں ہے, مگر گاؤں میں کئی قدیم عمارتیں اب بھی موجود ہیں. آپ کو سید احمد موسوی ہندی, سید آپ کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے, احمد ان کا نام تھا. موسوی وہ اس لیے لگاتے تھے کیونکہ جو شیعہ دھرم گرو جو شیعہ کے جو 7ویں امام ہیں ان کا نام تھا موسیٰ الخادم. یہ ان سے اپنا ونش کو جوڑتے تھے. تو یہ احمد موسوی جو تھے یہ قریب 1833 میں نجف چلے گئے تھے, اور نجف میں رہنے کے بعد میں وہاں پر پڑھنے کے لیے گئے تھے, اور اس کے بعد میں وہاں سے جا کے ایک خومنی جگہ پر جا کے ایران کے سیٹل ہو گئے تھے, اسی لیے انہیں خمینی کہا جاتا تھا. تو اور انہی کے گرینڈ سن جو تھے وہ آیت اللہ خمینی ہیں. تو اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے جو روٹس تھی وہ لکھنؤ سے لگے ہوئے ضلع بارابنکی کے کنتور گاؤں سے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کے مشترکہ حملے میں ایران کا سپریم لیڈر علی خامنائی کی موت ہو گئی تھی. حالانکہ علی خامنائی کا انڈیا سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے, لیکن ان کی موت کے بعد شیعہ برادری کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. اتر پردیش کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر احتجاج ہوئے تھے. معزز امام کی رپورٹ آپ نے سنی. پاکستان اور بین الاقوامی نشریاتی دنیا کی معروف آواز ماپارا صفدر ایک بار پھر خبروں میں ہے, مگر اس بار اپنی آواز کے ساتھ نہیں بلکہ ایک نایاب یاد کے ساتھ. 15 نومبر 1954 کو لاہور میں پیدا ہونے والی ماپارا صفدر نے بچپن سرگودا میں گزارا.
जहां से उन्होंने इब्तिदाई तालीम हासिल की। बाद अज़ा उन्होंने लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में मास्टर्स किया, जबकि पेशावराना सफर के दौरान यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से वुमेन्स स्टडीज में भी आला तालीम हासिल की। उन्होंने 1977 में पाकिस्तान टेलीविजन से बतौर न्यूज़ कास्टर अपने कैरियर का आगाज किया और जल्दी अपनी मुनफरिद आवाज़ और बावकार अंदाज की बदौलत नाजरीन की पसंदीदा बन गई। 1986 के एक सर्वे के मुताबिक वो उस वक्त की सबसे मकबूल खातून न्यूज़ कास्टर थीं। 1990 में वो लंदन मुंतकिल हुई और BBC उर्दू सर्विस का हिस्सा बन गई, जहां वो 2014 तक अपनी खिदमात अंजाम देती रहीं और उर्दू नशरियात का एक मोतबर चेहरा रहीं। अब ZBC सरबीन उनकी एक खास पेशकश आपके सामने ला रहा है, जहां वो अपनी ज़ाती लाइब्रेरी से एक नायाब तारीखी वीडियो शेयर करना चाहती हैं। ये वीडियो उस वक्त की है जब ईरान के रहबर आला अली खमीनी ने पाकिस्तान का दौरा किया था। एक ऐसा लम्हा जो तारीख में महफूज तो है मगर वीडियो की शक्ल में बहुत कम लोगों ने देखा है। ZBC सरबीन के सामीन की बड़ी तादाद ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि वो मापारा सफदर की आवाज़ में न सिर्फ खबरें बल्कि माजी की नायाब झलकियां भी देखना और सुनना चाहते हैं। ये पेशकश सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक दौर, एक आवाज़ और एक यादगार साफ्ती रिवायत की वापसी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बखैरियत होंगे। और ये जो आज मैं आपको फुटेज दिखाने वाली हूँ और जो आपसे बात करने वाली हूँ, ये 80 के अशरे के निस्फ के बाद की बात है। उस वक्त मुल्क में अभी दहशत गर्दी शुरू नहीं हुई थी और गैर मुल्की रहनुमा बहुत मामूल के मुताबिक पाकिस्तान के दौरों पर आया करते थे। जाहिर है कि सबकी फुटेज तो मेरे पास नहीं है, अलबत्ता कुछ दौरों की कुछ झलकियाँ थोड़ी बहुत मेरे पास महफूज हैं जो मैं अब आपको दिखाऊंगी। ईरान के इनकलाबी रहनुमा आयतुल्लाह खुमैनी के दस्ते रास्त और उस वक्त ईरान के सदर अली खामेनाई। तो लीजिए ये फुटेज हाजिर है, इसे देखिए और हाँ, आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा। ईरान के सदर हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली खामनाई पाकिस्तान के 3 दिन के सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचे तो उनका बड़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनैजो ने हवाई अड्डे पर उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर इस्लामाबाद के हवाई अड्डे को रंगारंग झंडियों, इस्तकबालिया बैनरों और पाकिस्तान और ईरान के कौमी परचमों से सजाया गया था। इस मौके पर सैकड़ों रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़े गए। सदर खामनाई खुसूसी ईरानी बोइंग जेट तैयारे से बाहर आए तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनैजो ने सदर खामनाई के साथ गर्मजोशी से हाथ मिलाया। इस मौके पर सदर सैयद अली खामनाई के साथ आए हुए वफ़द के अरकान का सदर मुमलकत और वज़ीर आज़म से तारुफ कराया गया। एक बच्चे ने मौजूद मेहमान को गुलदस्ता पेश किया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल रहीमुद्दीन खान, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल KM आरिफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल तारिक कमाल खान और फजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जमाल अहमद खान का तारुफ ईरान की सरबराही ममलकत से कराया गया। सदर खामनाई सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और वज़ीर आज़म मोहम्मद खान जुनैजो के हमरा सलामी के चबूतरे पर गए। ईरान और पाकिस्तान के कौमी तराने बजाए गए। ईरान के सदर हुज्जतुल इस्लाम सैयद अली खामनाई आज सुबह इस्लामाबाद से लाहौर रवाना हुए तो उन्हें बड़े इत्तफाक से रुखसत किया गया। स्टेट गेस्ट हाउस से हवाई अड्डे तक 4 मील लंबे रास्ते को दोनों जानिब हजारों की तादाद में लोग ईरान के सदर को अलविदा कहने के लिए जमा थे। सदर खामनाई ने लोगों के नारों का हाथ हिला हिलाकर जवाब दिया। तैयारी में सवार होने पर ईरान के सदर को 21 तोपों की सलामी पेश की गई। महापारा सफदर की इस बोली बसरी रिपोर्ट के साथ ही आज का सरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत से कबल अब तक की खास खबरें।
پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق جنوبی پارس گیس فیلڈ میں ایران کے پیٹروکیمیکل کمپلیکس پر فضائی حملے کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب نیم سرکاری خبر ایجنسی فارس کے مطابق گیس فیلڈ میں آگ لگی ہوئی ہے اور وہاں فائر موجود ہے۔ جنوبی پارس دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ ہے جہاں قطر اور ایران دونوں کے مراکز موجود ہیں۔ تسنیم کے مطابق یہ حملہ بدھ کی صبح کیا گیا تھا۔ ایران کے دارالحکومت تہران میں سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی، بسیج کے کمانڈر میجر جنرل غلام رضا سلیمانی اور بحریہ کے درجنوں اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے۔ پاسداران انقلاب سے منسلک نیوز ایجنسی تسنیم کے مطابق ان افراد کی نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ علی لاریجانی 17 مارچ کو تہران میں اپنے بیٹے کے ہمراہ ایک اسرائیلی حملے میں مارے گئے تھے، جبکہ بسیج کے کمانڈر کی ہلاکت بھی اسرائیلی فضائی حملے میں ہی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ 4 مارچ کو امریکی بحریہ کے حملے میں سری لنکا کے قریب ایرانی جہاز IRIS دینا تباہ ہوا تھا، جس میں درجنوں ایرانی بحری اہلکار ہلاک ہوئے تھے۔ ان کی بھی نماز جنازہ ادا کی گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل قاٹس نے دعویٰ کیا کہ ان کے ایک حملہ میں ایرانی انٹیلیجنس کے وزیر اسماعیل خطیب ہلاک ہو گئے ہیں۔ اسرائیل قاٹس کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ گزشتہ رات ایران کے وزیر برائے انٹیلیجنس اسماعیل خطیب کا بھی خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ ایران نے تاحال اس اسرائیلی دعوے کی تصدیق یا تردید نہیں کی ہے۔ سن 2021 میں ایران کے سابق صدر ابراہیم رئیسی نے اسماعیل خطیب کو وزیر برائے انٹیلیجنس مقرر کیا تھا۔ انہوں نے متعدد سینئر علماء سے فقہ کی تعلیم حاصل کی تھی، جن میں آیت اللہ خامنئی بھی شامل تھے۔ اسرائیل کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایران کی جانب سے ہونے والے حملوں میں 192 افراد زخمی ہوئے اور انہیں اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں سے 4 کی حالت درمیانی نوعیت کی ہے، جبکہ 177 افراد کو معمولی زخم آئے ہیں جن کا علاج جاری ہے، تاہم باقی 11 افراد کی حالت کے بارے میں وضاحت سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ وزارت کی جانب سے جاری بیان میں مزید کہا گیا کہ تنازع کے آغاز سے اب تک 3727 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن کو ہسپتال داخل کیا جا چکا ہے۔